لو، اور ان کی غریبی دیکھنا ہے تو ان کے مدرسوں کی حالت دیکھ لو، ان کے دینی اداروں کی حالت دیکھ لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے تو نبی کے بتائے طریقے پہ چلو، نبی کے بتائے راستے پہ چلو، اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ برہا کی رضا جوئی۔ مقتدر محترم علماء کرام و ائمہ مساجد، شورائے ذوی الاحترام، نقیب اہل سنت، کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ معزز سامعین کرام، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی سید الکونین وعلى آلہ واصحابہ فازوا فی الدارین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا، یعنی سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و بالا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، جان مسیحا، رحمت کا دریا، غمزدوں کا سہارا، جس نبی کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے حضور شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وصفت کند سعدی نا تمام، علیہ الصلاۃ نبی والسلام۔ وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرا امام فرماتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ نبی جن کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ فخر ازہر فرماتے ہیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ تمام لوگ محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں محبت کی تھالیوں میں اس امید پہ سجا کر کے پیش کریں کہ زمانے سے مسلسل درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ پڑھیے بابا جی بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب سے گزارش ہے کہ اس مائک کی سیٹنگ اس طرح سے کر دیں تاکہ آواز دور سے کیچ کرے، جی، اور باکس کی آواز وہاں تک بڑھائیں جہاں تک سیٹی نہ مارے۔
अब गला भी पकड़ रहा है, मैं बार बार आपको परेशान नहीं करूंगा बीच में, और मैं इसका आदी भी नहीं हूं। जो पैगाम लेकर के आया आपके सामने, वो पैगाम आप तमामी हजरात तक पहुंचाना है। उलमाए किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। आप इन तमाम उलमाए किराम के नूरानी चेहरे की जियारत कर रहे हैं। मैं सबके नाम नहीं जानता, लेकिन मेरा परवरदिगार सबके नाम जानता है। पहली बार इस इलाके में आना हुआ है, बस दुआ करें परवरदिगार आलम इस हाज़िरी को कबूल फरमा ले। आमीन। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। हमारे नकीब अहले सुन्नत फखरे नकाबत भाई कौनैन रजा साहिब किबला बड़ी अच्छी नकाबत फरमा रहे हैं। वहीं जलसे की सदारत फरमा रहे हजरत अलहाज सूफी जमालुद्दीन साहब और खतीब अहले सुन्नत मुबल्लिग इस्लाम नाशिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुश्कित रजा मिसबाही साहिब किबला, वो भी तशरीफ फरमा है। और दूसरी जानिब मेरे खतीब अहले सुन्नत खतीब नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना दिल नवाज अलीमी साहिब किबला तशरीफ फरमा है। इन उलमाए किराम की मौजूदगी में कुछ ज़रूरी बातें शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एक शेर पढ़ता हूँ, पूरी तकरीर उसी के तनाजुर में है कि तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए। तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायदे इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायदे इस्लाम हो जाए। और जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है। इंसान की जो जिंदगी है वो दो चीजों से घिरी हुई है, एक है आमाल और दूसरे है अकाइद, है ना मिसबाह साहब। और आज का ये जलसा जो है कि तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, आमाल पे मैं बोल देता हूँ, अकाइद पे मौलाना फारूक खान रज़वी को आप समाअत करते हैं। ठीक है, अच्छा। तो आपकी जिंदगी किस तरीके से गुजरनी चाहिए वो आज इस प्रोग्राम से आप पैगाम लेकर के जाएंगे। दुआ है परवरदिगार मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैंने 28वें पारे की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू, ऐ ईमान वालों अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। अल्लाह तबारक व तआला ने किससे फरमाया? ईमान वालों से, कि अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के ये सोचें, क्या आज हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा पा रहे हैं? जब हम अपने आप को ही जहन्नम की आग से नहीं बचा पा रहे हैं, हमारे आमाल ऐसे होते जा रहे हैं कि पांचों वक्त अजान की आवाज हम अपने कानों से सुनते हैं, फिर भी आज हमारी मस्जिदें सूनी पड़ी हुई हैं। मस्जिद के बाहर 10-12 लोग बैठ के बातें करते रहेंगे, अंदर जाकर के 10 मिनट इबादत में लगते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे। फिर भी दावा है कि हम जन्नत में जाएंगे। हाँ, ईमान सलामत है तो पहले जहन्नम में सजा भुगतने के बाद में किसी की सिफारिश से आप जन्नत में चले जाएं। मेरा रब कादिर मुतलक है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है, मेरा रब मालिक अलल इत्लाक है। लेकिन इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, हम एक गोल दायरे के अंदर हैं और वो दायरा शरीयत का दायरा है। अगर उस दायरे से बाहर निकल गए तो मेरा इमाम फरमाता है कि उनको रहम आए तो आए, वरना वो बड़ी मार है क्या होना है। और छुपे लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है।
कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है। तो हमें अपने आमाल की इस्लाह करनी चाहिए, हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। क्या आज हम वाकई अपने आप को जहन्नम से बचा पा रहे हैं? अगर वाकई हम अपने रब से डरते, वाकई हम अपने परवरदिगार से डरते, तो आज हमारे मदारिस उजले हुए नहीं होते, आज हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती, आज हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल होता, आज हमारे घरों का कल्चर इस्लामी कल्चर होता। आज आपको क्या पता, आप देखे खबरें देखा करो, तकरीबन 40,000 से ज्यादा मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, मुर्तद्दा हो गई। 10 लोगों की फैमिली आज हमारे घर में है। एक दिन दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज घर में बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल की बातें कर ले। कभी हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज अपने घर वालों से कहें कि सब लोग फजर के बाद में कुरान की तिलावत करें। आज हमने अपनी बच्चियों को ये पैगाम ही नहीं दिया कि बेटी सीरत फातिमा की किताब को पढ़ा करो, सीरत ज़ैनब किताब को पढ़ा करो। जब हम अपनी बच्चियों को बताएंगे कि हजरत फातिमा ने जिंदगी कैसे गुजारी है, तब ना वो पर्दे की अहमियत को जानेंगी। जब हम बताएंगे कि हजरत ज़ैनब ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है, तब ना वो पर्दे की अहमियत को समझेंगी। हम बताएंगे कि हजरत सकीना ने करबला के मैदान में अपने शबो रोज कैसे बसर किए हैं, तब वो पर्दे की अहमियत को समझेंगी। आज हमारे घरों का माहौल देखो तो आज सामने टीवी रखा हुआ है, आज हर हाथ में टीवी है, आज हर घर में टीवी है, आज हर जेब में टीवी है, आज हर हाथ में टीवी है। आज हम नमाजों से दूर होते जा रहे हैं। 2.5 घंटे की फिल्में ये कौम बैठ करके देखती है, 10 मिनट नमाज में लगते लेकिन अल्लाह की इबादत करने के लिए नहीं जाती है। कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफ़े महशर के सामने। तुम इस दुनिया में आए हो, तुम्हें यूं ही पैदा नहीं किया गया है, इंसान को बेकार पैदा नहीं किया गया है। अल्लाह ने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। जिस काम के लिए पैदा किया गया उसी काम के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मोबाइल चलाने के लिए वक्त है, फेसबुक चलाने के लिए वक्त है, व्हाट्सएप चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, इलेक्शन की बातें करने के लिए हमारे पास वक्त है, कौन सी पार्टी कौन सी जीत रही है ये बताने के लिए हमारे पास वक्त है, कौन सा नेता हार रहा है ये बताने के लिए हमारे पास वक्त है। आज अखबार में कितने मरे ये कौम अभी बैठ करके पूछ लो तो बता देगी फला जिले में ये हुआ था, लेकिन पूछो कि नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है तो कहते हैं मौलाना हम नहाए हुए नहीं हैं, कहते हैं मौलाना हम पाक नहीं हैं। बताओ जिस कौम के लिए ये पैगाम दिया गया कि पाकी आधा ईमान है, वही कौम आज अक्सर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते, अपने रब की इबादत नहीं करते। अब रमजान शरीफ के रोजे आ रहे हैं, अब आपको नए नए तरीके के बीमार निकल करके आ जाएंगे और आकर के जरा जरा सी बीमारियों पे कहेंगे मौलाना तबीयत ठीक नहीं है, हम रोजा कहाँ से रखें, हमारी तबीयत खराब चल रही है, हम रोजा नहीं रख पाएंगे। मामूली से दर्द पे रोजा छोड़ने वाली ये कौम, इसीलिए ये जलजले यूं ही नहीं आते हैं, ये जमीनें यूं ही नहीं फटती हैं, ये परेशानियां यूं ही नहीं आती है। वो पत्ता पेड़ से गिर जाता है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो जानवर ज़िबाह कर दिया जाता है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, वो मछली से काट ली जाती है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाती है। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई है, हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए हैं। अभी चंद दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, इस कौम के लोगों को देखो 3-3 हजार के टिकट खरीद करके उस फिल्म को देखने के लिए गए। आज अगर मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनके शौक देख लो, और इनकी गरीबी देखना है तो इनके मदरसों की हालत देख लो, इनके दीनी इदारों की हालत देख लो। अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे तो नबी के बताए तरीके पे चलो, नबी के बताए रास्ते पे चलो, और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दो कि हमें करनी है शहंशाह बरहा की रज़ाजोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमाते आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी। वाह वाह वाह, हमें करनी है शहंशाह बरहा की रज़ाजोई। वो अपने हो गए तो
रहमते परवरदिगार अपनी तरीके मुस्तफा को छोड़ता है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हज़रात, तो आज हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहा। यही वजह है कि आज परेशानियों ने हमारे घरों का दरवाजा देख लिया। आज हर जगह मुसलमान सताया जा रहा है। आप देख लो, किसी महकमे में कोई मुसलमानों की सुनने वाला नहीं है। बैंक में जाओ तो बेचारे दाढ़ी रख करके फार्म लेके दूसरे की तरफ जाते हैं कि आप हमारा फार्म भर दो। कहता है नहीं मेरे पास वक्त नहीं, कोई कहता है कलम नहीं है, फिरते हैं। आप देखो, किसी भी महकमे में चले जाओ आप, गवर्नमेंट की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। वो कौम जिसके लिए रब ने फरमाया वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त कि तुम मुसलमान बन जाओ। हम सही माना में मुसलमान बने। क्या आज हम सही माना में मोमिन हैं? सिर्फ जुबान से कह देना कि हम मुसलमान हैं ये काफी नहीं है। तेरे आमाल ऐसे हो जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए, बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायले इस्लाम हो जाए। ये नबी के आशिक ऐसे नहीं होते कि जो अजानों की आवाजें सुने और अपने घर पे आराम से बैठे रहे। नबी के आशिक ऐसे नहीं होते जो 10 मिनट यहां पर बैठने के लिए तैयार ना हो, जो 1-2 घंटा नबी के नाम पे नहीं दे सकते, वो नबी के नाम पे जान कहां से दे सकते हैं? सिर्फ जुबानी दावा करने से काम नहीं चलेगा। आओ मैं मोमिन की पहचान बताऊं। आका फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए, ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। अब आओ, आज जो हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, आज जो हमारे ऊपर परेशानियां आ रही हैं, ये तो आज मामला है। नबी ने 1450 साल पहले बता दिया था, नबी ने 1450 साल पहले फरमा दिया था। तिरमिज़ी शरीफ बाबुल फितर में ये हदीस मौजूद है। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। इस हदीस के रावी मौला अली शेर खुदा है। मौला अली शेर खुदा क्या फरमाते हैं? अन अली इब्ने अबी तालिब काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती ब15 खसला हल्ला बिहल बलाउ क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आ जाएंगी, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, हल्ला बिहल बलाओ, चारों तरफ से मुसीबत उनको घेर लेगी, चारों तरफ से उनको परेशानियां घेर लेंगी। आज अपने अपने गिरेबान का जायजा लेकर के देखो, कहीं हम तो इस हदीस की जद में नहीं आ रहे हैं, कहीं वो खराबी हमारे अंदर तो नहीं है, कहीं वो आदत हमारे अंदर तो नहीं है। आज का मामला है, नबी ने 1450 साल पहले फरमा दिया था, इज़ा फ़अलत उम्मती ब15 खसला, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 आदतें आ जाएंगी, हल्ला बिहल बलाओ, चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी उनको। सहाबा ने अर्ज किया, क़ीला वमा हुन्ना या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह वो 15 खसलतें क्या हैं? आका फरमाते हैं, इज़ा कानल मगनमु दुवला वल अमानतु मगनमा व ज़कातु मगनमा। मेरे आका फरमाते हैं, जिस दिन माले गनीमत को अपना माल समझा जाएगा, ज़कात देने को तावान समझा जाएगा, अमानत में खयानत की जाएगी। अब बताओ, क्या आज इंसान ज़कात अदा कर रहा है? तकरीबन 95% मुसलमान ज़कात अदा नहीं कर रहा है। और ज़कात का मसला क्या है? तो शरीयत का हुक्म ये है कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या इन दोनों में से किसी की कीमत उसके पास है तो वो मालिक निसाब है, उसके ऊपर ज़कात फर्ज है। अगर 52.5 तोला चांदी को आज के दौर में अगर वजन किया जाए और उसकी कीमत लगाई जाए, तो एक मिसाल से समझा रहा हूँ सिर्फ, अगर 80,000 रुपए किलो चांदी है तो आधा किलो चांदी 40,000 की हो जाएगी, और
बचेगी 1.5 तोला, तो 52.5 2.5 तोला बचेगी। अब मान लीजिए 41,000 रुपए मैं मान लेता हूँ, अगर किसी इंसान के पास 41,000 रुपए हैं तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज है, उसे अपने माल की ज़कात निकालनी चाहिए। और जो ज़कात नहीं निकालते हैं उसकी सजा क्या है? तो 10वां पारा सूरह तौबा रब फरमाता है, वल्लज़ीना यक्निज़ूना ज़हबा वल फिद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम अल्लज़ी युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम व तुक़बा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। रब 10वें पारे में इरशाद फरमाता है, वो लोग जो सोने और चांदी को जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते हैं, तो उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। जिस दिन उस माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, उससे चेहरे दागे जाएंगे, उससे करवटें दागी जाएंगी, उससे पीठें दागी जाएंगी। अब इसको अगर समझना है तो एक 10 रुपए का सिक्का आग के अंदर डालना, और जब वो सुर्ख हो जाए, लाल हो जाए, तो आग से निकाल के उसको अपनी हथेली पे रख करके देखना। अगर बर्दाश्त कर पाओ तो मुझे बताना। अरे जब ये दुनिया की आग में गर्म हुआ सिक्का हम अपने हाथ पे नहीं रख सकते, तो जहन्नम की आग में जो माल तपाया जाएगा, उस माल से ये चेहरे दागे जाएंगे, ये करवटें दागी जाएंगी, ये पीठें दागी जाएंगी। वो माल कहेगा, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, मैं तुम्हारा वही माल हूँ जिसे तुमने दुनिया में जमा किया था। फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, तो उसका मजा चखो जिसे तुम दुनिया में जमा करके आए हो। माल किस लिए जमा किया जाता है? ताकि जिंदगी सुकून से गुजर जाए। माल किस लिए जमा किया जाता है? ताकि जिंदगी आराम से गुजर जाए। माल किस लिए जमा किया जाता है? ताकि हमारे घर आलीशान हो जाए। माल इसलिए जमा किया जाता है ताकि मेरा लिबास अच्छा हो जाए, मेरा मकान अच्छा हो जाए, मेरा नाम ऊंचा हो जाए। और मरने के बाद अल्लाह सबसे पहले यही 3 चीजें बदल देता है, लिबास कफन बना देता है, नाम मरहूम कर देता है, और मकान कब्र बना देता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसे पे घमंड आने लगे, कभी सेहत पे घमंड आने लगे, कभी बेटों की नौकरी पे तकब्बुर आने लगे, कभी बिल्डिंगों में फख्र महसूस होने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं। वो जो कभी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे, आज वो कब्रों के अंदर उनकी हड्डियों के नामो निशान मिट गए हैं। घमंड किस बात पे किया जा रहा है? ये दौलत यही रह जाती है, ये सरमाया यही रह जाता है, ये पैसा यही रह जाता है। कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती है, कब्र के अंदर कोई रुपया पैसा काम नहीं आता है। कब्र के अंदर अगर कोई चीज काम आती है तो वो नबी की शरीयत काम आती है, नबी की मोहब्बत काम आती है। इस हाल में दुनिया से जाना कि जब जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कह दें कि लहित में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहित में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मशाइख़े अहले सुन्नत, मज़हबे इस्लाम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती फुरक़ान रज़ा बनकरी। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। नेक बन के दुनिया से जाओ। वाह, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग कहें कि बहुत अच्छा हुआ, लोगों को सताने वाला चला गया। अल्लाह, इस तरह से दुनिया से भज जाना कि लोग कहें बहुत इमामों की और हाफिजों की बुराई करता था, आज चला गया। अल्लाह, बुजुर्गों ने कहा है लोग मरने के बाद कब्र में चले जाते हैं, अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। हाँ हाँ, फिर लोग उसे याद करते हैं, अपने लफ्जों में याद करते हैं, अपने गुफ्तगू में याद करते हैं। तो नेक बन के दुनिया से जाओ, अच्छे अमल करके दुनिया से जाओ। मेरे आका ने फरमाया जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खसलतें आ जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबत घेरेंगी। आका फरमाते हैं माले गनीमत को अपना माल समझा जाएगा, ज़कात देने को तावान यानी दंड समझा जाएगा, और अमानत में खयानत की जाएगी। अब सुने आगे की हदीस पाक के अल्फाज सुने। आका फरमाते अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्महु व बर्रा सदीक़हु व जफा अबाहु
आका इरशाद फरमाते हैं, बीवी का कहना माना जाएगा, माँ की नाफरमानी की जाएगी। दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा इंसान और अपने बाप पे जुल्म करेगा। आज ये बीमारी हमारे अंदर है कि नहीं है? आज ये बीमारी हमारे मुआशरे में पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है? वो माँ बाप कि जिन्होंने औलाद को अपने सीने से लगा के रखा, वो माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद के हर दुख में रातों की नींदें कुर्बान कर दी, वो औलाद जिसके लिए बाप को रात में नींद नहीं आई अगर तबीयत खराब हो गई, वो औलाद जिसके लिए बाप ने बेहतरीन मकान बना के दिए, वो औलाद जिसको बाप ने बेहतरीन कारोबार जमा करके दिया, वो औलाद जिसके लिए माँ ने रातों की नींदें कुर्बान कर दी, अगर पेशाब कर दिया तो बेटे को सूखे में सुलाया, खुद गीले में सोती रही। वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे तो उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया गया। इंसान बोझ समझता है बुढ़ापे में माँ बाप को। पूरा कुरान पढ़ के देखे, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, ये बताएंगे आपको जहां जहां अल्लाह ने कुरान में अपने हक बयान फरमाए हैं, ठीक उसके बाद में माँ बाप के हुकूक बयान फरमाए हैं। सुभान अल्लाह। ये माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, जिस दिन इसका साया सर से उठ जाता है तब पता चलता है कि हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए, तब पता चलता है कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। चीज की कदर चीज के ना होने पे की जाती है। आज ये मोबाइल मेरे पास है, मैं इसकी कदर नहीं करता। यही मोबाइल अभी कहीं गिर जाए और मुझे आपके यहाँ जलसे में आना पड़े, तब मुझे पता चलेगा कि काश मेरे पास मोबाइल होता तो फोन लगा के शाहनवाज से पूछ लेता कि किस जगह आना है। काश मेरे पास फोन होता, मोबाइल होता तो मौलाना कौनैन से पूछ लेता जलसा किस जगह है, वहां जाना है। जब तक मेरे पास है मैं इसकी कदर नहीं करता, और जब यही चीज मेरे पास से खत्म हो जाए तो मुझे इसकी कदर महसूस होती है। इसलिए माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, अभी पता नहीं चलता है। जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं फिर पता चलता है कि हम कितने बड़े साए से महरूम हो गए, हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। माँ बाप की कदर कर लो नौजवानों। सिर्फ मोबाइल चलाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ फेसबुक चलाने से काम नहीं चलेगा। आज जिन माँ बाप को बुढ़ापे में बोझ समझा जा रहा है, इनकी सफेद दाढ़ियां देख लिया करो, कभी इनके हाथ को अपने हाथ में लेकर के देख लिया करो। इनके हाथों की लकीरें मिट गई, आज हमारे हाथों की लकीरें नजर आ रही हैं। हमने पूछा अपने अब्बा से, अब्बा आपके हाथ की लकीरें मिट गई, हमारे हाथ की तो नजर आ रही है। तो एक ही जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई, तुम्हारी किस्मत चमकाते चमकाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता है अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता है अपनी औलाद के लिए। कभी नौजवान तुम्हें ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, तो कभी रात के 3-4 बजे बहादुरगंज की तरफ चले जाया करो, कभी किशनगंज जिले की तरफ चले जाया करो। वहाँ रात के 3-3 बजे ऑटो रिक्शा लेकर के चलने वाला ये एक बाप ही तो है, मेहनत मजदूरी करने वाला ये एक बाप ही तो है, जो खेतों में काम कर रहा है ये एक बाप ही तो है, जो दूसरों के घरों पे मजदूरी कर रहा है ये एक बाप ही तो है, जो दूसरों के घरों पे सर पे ईंटें लेकर के 3-3 मंजिल पे चढ़ रहा है ये एक बाप ही तो है। तुम तो घर में आराम से मोबाइल चला रहे हो, वो जाकर के अपना पसीना बहा करके शाम को पैसे ला करके अपनी औलाद के लिए जमा करता है। मैंने बरेली शहर में एक बुजुर्ग से पूछा था, चाचा इस उम्र में आप रक्षा चला रहे हो, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं बेटा अगर मैं रक्षा नहीं चलाऊंगा तो बेटे की कॉलेज की फीस कहाँ से भरूंगा, बेटे की यूनिवर्सिटी की फीस कहाँ से भरूंगा। ऐ नौजवानों, ये कॉलेज की फीस भरने वाला एक बाप है, यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है, तुम्हारे लिए मेहनत मजदूरी करके पैसा जमा करके खर्च देने वाला ये एक बाप है, तुमको पॉकेट मनी देने वाला ये एक बाप है, तुम्हें कीमती मोबाइल दिलाने वाला एक बाप है। आज उसी की कुर्बानियों को भूल गए, आज उसी की मेहनतों को फरामोश कर दिया। बाप क्या नहीं करता है अपनी औलाद के लिए। बुजुर्गों ने कहा है बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब गरम गरम हवा के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, तो सबसे बेहतर साया दरख्त का साया माना जाता है।
पहुंचाता है, अपनी औलाद को साया देता है। ऐसे माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साए की नाकदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये चारपाई घर से उठ गई, उस दिन कोई दुआ देने वाला तक नसीब नहीं होगा। जिस माँ की बोली अच्छी नहीं लगती, जिस बाप की खांसी आज हमको अच्छी नहीं लगती, एक दिन वो चारपाई जब घर से उठ जाएगी, पूरे घर में तलाश करते हुए फिरोगे, तब भी बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। इसलिए माँ बाप की कुर्बानियों को पहचान लो। अल्लाह 15वें पारे में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। रब 15वें पारे में इरशाद फरमाता है, क्या फरमाता है तेरा रब फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और माँ बाप के साथ भलाई करो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। कब भलाई करो, कब हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा और किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, तो उन्हें उफ तक ना कहना, उनसे सख्त कलामी से बात ना करना, उनसे तेज तर्रारी से बात ना करना, उनसे जुबान दराजी ना करना, उनसे जोर से बात ना करना। बुजुर्गों ने कहा है, उलमाए किराम फरमाते हैं कि बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे रियाया अपने बादशाह से बात करती है, इस तरह से बाप से बात करनी चाहिए। अगर बाप रास्ता चल रहा हो और औलाद बाप के आगे आगे चल रही हो, तो ऐसी औलाद को बेअदबों में शुमार किया गया है। अगर बाप रास्ता चल रहा है तो बाप के पीछे चलो, तब वफादार बेटे कहलाओगे। बाप कितनी बड़ी शख्सियत है। आओ नबी की बारगाह में चलते हैं। एक नौजवान सहाबी ने आकर के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद चाहते हैं कि वो मेरा सारा माल ले ले, या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? आका ने फरमाया इनके वालिद को बुलाया जाए। वो सहाबी रसूल को बुलाया जाता है, डंडे का सहारा लेकर के आका की बारगाह में आए। पूरे हो चुके थे सहाबी, आकर के सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम अपने बेटे के सारे माल को लेना चाहते हो? मेरे आका की इस बात को सुन करके सहाबी की आंखों में आंसू आ गए, सहाबी रोने लगे। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इससे खर्चा लेने के बाद करता क्या हूँ? मैं इसी के तो करीबी रुपए पे खर्च कर देता हूँ, इसी के घर में ही तो खर्च कर देता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं पैसे लेके क्या करूंगा? फिर उसके बाद सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। वो जब घर से चले थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया था कि या रसूल अल्लाह, इन्होंने कुछ अशआर अरबी में कहे हैं जो अभी इनकी जुबान पे नहीं आए हैं, सिर्फ इनके दिल में रह गए हैं। उन अशआर को आप सुन लीजिए। मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, तुमने अभी कुछ अशआर कहे हैं, अब वो जरा मुझे सुनाइए। सहाबी रो रो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे मोजज़ात का सुदूर होता है, हमारा ईमान ताजा हो जाता है, हम जान गए कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये अशआर मैंने अपने दिल में कहे थे, अभी जुबान पे नहीं आए हैं। जो दिल के हालात को जानने वो नबी ही है, वो पैगंबर ही है। मेरा इमाम बरेली से पुकार के कहता है, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। सरे अर्श पे है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलाकूत मुल्क में कोई शे नहीं वो जो तुझ पे आया हो, और तो खुदा खुदा का यही है कर, नहीं और कोई नफर न कर। जो वहां से हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, अल्लामा मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी। माशाअल्लाह। सुने, बात समझ में आ रही है आपके? जरा हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खामोशी से आप सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही सुनिए।
لیکن زبان سے مقبولیت کی علامت ہے. زبان سے اگر آپ بول دیں گے تو اللہ کی پاکی بیان کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ پاک ہے. اللہ تمہارے کہنے سے پاک نہیں ہے. جی پوری زندگی مت بولو سبحان اللہ، اللہ تب بھی پاک ہے. لیکن سبحان اللہ کہتے کہتے تمہارے دل پاک ہے. اس لیے بار بار بلوایا جاتا ہے کہو سبحان اللہ. لیکن آپ خاموشی سے سننا چاہتے ہیں تو سنیے. باپ ہے کیا؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے یہ اشعار کہے تھے، اس کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ میرا وہی بیٹا ہے کہ جسے جب کھانا نہیں آتا تھا تو میں نے اپنے ہاتھ سے کھلایا. یہ میرا وہی بیٹا ہے جسے جب چلنا نہیں آتا تھا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اسے چلنا سکھایا. میرا یہ وہی بیٹا ہے کہ جب یہ روتا تھا تو میں تڑپ جاتا تھا. آج وہ بیٹا میرا پیسے کمانے لگا تو باپ ہی سے قرضہ مانگنے لگا. اللہ اکبر. میرے آقا نے جب اتنا سنا تو رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا رونے لگے، صحابہ بھی رونے لگے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ان کی بات سن کے صرف میں ہی نہیں رو رہا، تم ہی نہیں رو رہے، بلکہ میرے ارد گرد جتنے پتھر ہیں ڈھیلے ہیں وہ سب کے سب آنسو بہا رہے ہیں. پتہ چلا جس گھر میں باپ کو ستایا جاتا ہے، جس گھر میں باپ پہ ظلم کیا جاتا ہے، اس گھر کے در و دیوار بھی آنسو بہاتے ہیں. اللہ اس گھر سے برکتیں اٹھا لیتا ہے، اللہ اس گھر سے سکون اٹھا لیتا ہے، اللہ اس گھر سے رحمتیں اٹھا لیتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول کو سامنے کھڑا کر کے آقا فرماتے ہیں اذهب انت ومالک لابیک. صحابی چلے جاؤ، تم پر بھی تمہارے باپ کا حق ہے، تمہارے مال پر بھی تمہارے باپ کا حق ہے. اولاد کتنا بھی کہے یہ مکان میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے، اولاد کتنا بھی کہے یہ پراپرٹی میں نے اپنے پیسے سے خریدی ہے، اولاد کتنا بھی کہے یہ اکاؤنٹ میں نے اپنی دولت سے جمع کیا ہے. حدیث پاک کہتی ہے کہ تیرے مکان پر بھی تیرے باپ کا حق ہے، تیری جائیداد پر بھی تیرے باپ کا حق ہے، تیرے اکاؤنٹ پر بھی تیرے باپ کا حق ہے، اور تیری ذات پر بھی تیرے باپ کا حق ہے. انت ومالک لابیک، تجھ پر بھی تیرے باپ کا حق ہے، تیرے مال پر بھی تیرے باپ کا حق ہے. تو باپ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازے کا نام ہے. آؤ ذرا دیکھو اس باپ کی قربانیاں آج ہم نے فراموش کر دی، اس باپ کی محنتیں آج ہم نے بھلا دی. آج اولاد چار پیسے کیا کمانے لگے، تھوڑی سی دولت اس کے پاس میں آ جائے وہ ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیتی ہے. خود کے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، خود کے کمرے میں کولر لگا ہوا ہے، جاڑوں میں گرم ہیٹر کا انتظام ہے، اور ماں باپ ہیں کہ جھوپڑی میں رہ کر کے اپنے شب و روز گزار رہے ہیں. ماں باپ ہیں کہ ٹینوں میں رہ کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کیا اسی دن کے لیے ماں باپ اپنے اولاد کو جوان کیا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اولاد کو پالا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے ماں باپ نے اپنی اولاد کو کی خاطر راتوں کی نیندیں قربان کی تھی؟ اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، یہ ماں باپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کا میرے لیے کیا حق ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہما جنتوں کا ہما ناروں کا، وہ تیرے لیے جنت بھی ہے وہ تیرے لیے جہنم بھی ہے. ان کی خدمت کرو گے اللہ جنت عطا فرمائے گا، ان کی فرما برداری کرو گے اللہ جنت عطا فرمائے گا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرو گے انہیں ستاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا. اور آؤ ایک حدیث پاک سنو. میرے آقا کی بارگاہ میں یمن کے نوجوان صحابی آئے. کہاں یمن کے نوجوان صحابی آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں یمن سے آیا ہوں، اب جتنی زندگی بچی ہے مدینے میں گزاروں گا. یا رسول اللہ واپس اپنے ملک یمن نہیں جاؤں گا، اب میں اپنے شہر واپس نہیں جاؤں گا. کہاں آئے ہیں صحابی رسول؟ مدینے شریف میں آئے ہیں. کہاں نبی کے مبارک شہر میں صحابی رسول آئے ہیں. ذرا سوچو تو صحیح، وہ مدینے کی سرزمین جہاں رو رو کے پوری زندگی مسلمان یہی دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. اس مدینے میں صحابی رسول آئے ہیں جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ
मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। आला हजरत फरमाते हैं तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। उस मदीने में सहाबी रसूल आए हैं जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा दे जाए थोड़ी खाक के आस्ताने से। वो मदीने की सरजमीन है जिसके बारे में आका फरमाते हैं मदीने में सुकून है। ताज शरिया फरमाते हैं मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है। बहार बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता। मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है। उस मदीने में आए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगाते रहिए जब तक जिंदगी है। ये जलसूरा तो बाप क्या होता है। नौजवान सहाबी है मदीने शरीफ में आए हैं। अभी बताया ना कौनैन भाई ने कि मऊ आजमगढ़ के शायर की तमन्ना थी कि आका के रोजे पे पहुंचे। हर मुसलमान के दिल में तमन्ना है कि आका का रोजा देखें। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में। गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। और वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में एक शायर ने यूं कहा था कि तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, तैबा से लौटना किसी आशिक से पूछिए, ऐसा लगा कि रूह बदन से निकल गई। और अल्लामा हसन कहते हैं मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीना आए हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। वो मदीने की सरजमीन है जिस जहां के बारे में जज्बुल कुलूब इल्तियारिल महबूब के अंदर मैंने पढ़ा कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि मदीने शरीफ के अंदर कई किस्म की खजूरें पाई जाती हैं। मदीने शरीफ की सरजमीन बड़ी बरकतों वाली सरजमीन है, बड़ी अजमतों वाली सरजमीन है। अब आओ मैं उसी मदीने शरीफ की बात कर रहा हूँ। नौजवान सहाबी ने आकर के अर्ज किया या रसूल अल्लाह अब मैं वापस यमन नहीं जाऊंगा, जितनी जिंदगी बची है यहीं पर गुजारूंगा। तो आका ने इरशाद फरमाया हल्लका बाबाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात है। सहाबी ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा है। आका फरमाते हैं क्या उनसे इजाजत लेके आए हो, क्या पूछ करके आए हो। अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह मैं इजाजत लेके आया हूँ। हाँ आका मैं पूछ करके आया हूँ। आका फरमाते हैं क्या उन्हें ये बताया कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। अर्ज करते हैं हाँ या रसूल अल्लाह मैं ये भी बता के आया हूँ। मेरे आका फरमाते हैं जब तुमने ये कहा कि तुम वापस नहीं आओगे तो तुम्हारे माँ बाप की हालत कैसी थी। वो हंस रहे थे कि रो रहे थे। सहाबी की आंखों में आंसू आ गए। लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह जब मैंने ये कहा कि मैं वापस नहीं आऊंगा तो मेरे माँ बाप गले लग करके फूट फूट करके रो रहे थे, फूट फूट करके रो रहे थे, एक दूसरे के आंसू पोंछ करके रो रहे थे। नबी को जलाल आ जाता है, उठ के खड़े हो गए। इरशाद फरमाते हैं इरजी इलैहिमा फअदहिकहुमा कमा अबकैतहुमा। ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से लौट के आए हो वहीं पर चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला के आए हो वैसे उन्हें हंसा दो। वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। क्या समझे पता चल गया वो माँ बाप को सता करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है और बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल के आ रहा है। इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान है, बेटा करियर के चक्करों पे चक्कर लगा रहा है। इतना याद रखना मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी है
कितनी बड़ी नेमत है। उस दिन पता चलता है जिस दिन ये साया हमारे सर से उठता है। ये वही जानता है ना कि जिसके ऊपर पड़ती है। जो इस रास्ते से गुजरता है वो जानता है कि इस रास्ते पे क्या क्या मामला है। मैं गुजरा हूं ना इस रास्ते से। अभी चंद दिनों पहले मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है। अभी चंद दिनों पहले, 3 महीने भी नहीं होने वाले थे। इससे पहले हम जलसा करके घर पे जाते थे। कौनैन भाई हैं, अल्लामा नवाज साहब हैं, मुशफिक मिसवाई साहब हैं, ये इसके भी लाइन से जुड़े हुए जो उलमा शोरा हैं, ये जानते हैं ना कि जब शिद्दत के जाड़े पड़ते हैं जनवरी और दिसंबर में, जब करीब का नहीं दिखता है, जलसे तो हर वक्त होते हैं फजले ही ताला। तो जब जलसा करके जब जाते थे ना जाड़ों में, जाड़े तो इससे पहले भी मेरी लाइफ में आए, तो जब भी जलसा करके दरवाजे पे पहुंचते थे तो आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अंदर से आवाज आती थी, बेटा आ गया, दरवाजा खोल दो। आज कई बार फोन करके उठाना पड़ता है, तब कहीं जाके दरवाजा खुलता है। बाप होता क्या है ये तब पता चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है। जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। जब खुद की औलाद की तबीयत खराब हो जाए, उसे बुखार आ जाए, तब पता चलता है कि बाप कैसे अपनी नींदें कुर्बान कर देता है। आज का दौर बड़ा तरक्की कर गया है। आज का दौर बड़ा तरक्की याफ्ता दौर है। ये बुजुर्ग बैठे, आप इनसे पूछे, सूफी साहब किबला से पूछे, ये बताएंगे। मौलाना ममनून साहब से पूछे, ये सब बताएंगे आपको कि अब से 30-35 साल पीछे पलट के जब आप जाएंगे तो दौर इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। आज तो अक्सर सड़कें आपको पक्की मिलेंगी, सीमेंटेड मिलेंगी, पहले कच्ची सड़कें हुआ करती थी। पहले लोग नाले और नदियां पार करके लोग शहर और कस्बे की तरफ जाते थे, आज तो पुल पड़ गए। पहले किसी के घर में सिर्फ साइकिल पाई जाती थी। कई गांव इकट्ठे करके देखते तो किसी एक के घर में मोटरसाइकिल मिलती, और किसी एक के घर में अगर कार होती भी तो सबसे बड़ा जमींदार माना जाता था। आज अक्सर घरों में कारें हैं, एक घर में 4-4 कारें खड़ी हैं। हर घर में मोटरसाइकिल है, इतना माशाअल्लाह, हर घर में साइकिल है। आज का दौर कितना तरक्की कर गया। तुमको कभी ये लगे ना कि बाप ने हमारे लिए किया क्या है, तो अपने बचपन में पलट के चले जाया करो। आज का दौर इतना तरक्की कर गया कि आज अगर हमारे बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, तो आज अगर हमको यहाँ के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तो हम किशनगंज लेकर के पहुंच जाएंगे जी। किशनगंज के डॉक्टर से फायदा नहीं होगा तो बाल डोगरा पहुंच जाएंगे, वहां फायदा नहीं हुआ तो बाया फ्लाइट जो है दिल्ली पहुंच जाए या मुंबई पहुंच जाए। आज हम सफर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा डॉक्टर के पास जाके यही कहा, डॉक्टर साहब मेरा यही एक बेटा है, नूरे नजर है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, अगर खुद को भी गिरवी रखना पड़ेगा तो रख दूंगा, लेकिन मेरी औलाद पर कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गया तो ये औलाद भूल गई कि बाप ने कौन सी कुर्बानी दी है। आज अपनी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हो गए। आज हमारी औलाद की तबीयत खराब हो गई, हमारे नातों की नींदें कुर्बान हो गई। कभी सोचा है कि हमारे माँ बाप ने भी तो हमारे लिए कैसी कुर्बानियां पेश की हैं। हमारे माँ बाप ने भी तो रात की नींदें कुर्बान की है। हमारे माँ बाप यही हमारे माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप। जब हम उनके पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन हमको डॉक्टर के पास लेकर के गए, माँ ने अपनी चादर अपनी औलाद को उड़ा दी सर्दी में ताकि इसे सर्दी न लगने पाए। खुद फिटरती हुई चली गई लेकिन औलाद को सर्दी नहीं लगने दी। आज वही माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया गया। ईद के मौके पे बच्चे सेवई खाए और माँ बाप बच्चों का चेहरा देखे, बकरा ईद के मौके पे बच्चे गोश्त खाए और माँ बाप बच्चों का चेहरा देखे। कैसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था। एक बार तुम्हारी माँ ने ये कह दिया था कि ईद पर मेरे बेटे को नए कपड़े चाहिए। यही पूरा बाप है, जब कमाने जाता था तो दूसरों के घरों में मजदूरी करके नए कपड़े बना के दिए, दूसरों के खेतों में काम करके नए कपड़े बना के दिए, ऑटो रिक्शा चला करके नए कपड़े बना करके दिए। आज वही बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गया, खुद के
بچے ایئر کنڈیشن روم سے ایئر کنڈیشن روم میں رہتے ہیں، بہترین شاپنگ مال سے کپڑے خرید کے لاتے ہیں، اور ماں باپ پرانے کپڑے پہن کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کون سا منہ لے کے جاؤ گے محبوب داور کے سامنے؟ کون سا چہرہ لے کے جاؤ گے شاپ محشر کے سامنے؟ قیامت میں میرے آقا نے تم سے پوچھ لیا کہ ماں باپ کی نعمت بڑھاپے میں ملی تھی، بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے ہو؟ کیا جواب دو گے؟ ان کا بستر گھر سے باہر کر کے آئے ہیں؟ کیا کہو گے انہیں تینوں میں رہنے پہ مجبور کر کے آئے ہیں؟ میں ایصال ثواب کا منکر نہیں ہوں، میں خود بھی ایصال ثواب کرتا ہوں بے فضلہ تعالیٰ، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو جب فاتحہ کا نمبر آتا ہے تو کتنے قسم کے پھل رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کتنے قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کیا اچھا ہوتا کہ جب باپ زندہ تھا تو اس کے سامنے ایک سیب کاٹ کر کے اپنے باپ کے منہ میں دے دیتا۔ کیا اچھا تھا کہ جب ماں زندہ تھی تو اپنی ماں کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے لقمے رکھ دیتا۔ تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہو جاتے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتے، اللہ تیری تقدیر کو بدل دیتا، تو دنیا میں بھی آرام سے رہتا، مرنے کے بعد قبر میں بھی آرام سے رہتا، جنت کی بہاریں تمہارے لیے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مشائخ اہل سنت حضرت علامہ فرقان رضا منظری۔ آپ توجہ میری طرف دیجیے۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس دن میری امت میں یہ 15 خصلتیں آ جائیں گی، جس دن میری امت میں یہ 15 عادتیں آ جائیں گی، حل بہل بلاؤ،